the today's lecture, the topic, है ना, topic is going to be, it is hydrocarbon it is preparation and reaction. हाइड्रोकार्बन के लिए it is preparation and reaction. First one, you can remember few name reaction including, let's say Wurtz reaction. किसी बच्चे को आइडिया है बेटे वुर्ज रिएक्शन क्या होता है? मतलब कुछ वुर्ज रिएक्शन में कुछ ऐसा है, इट इज RX. बेटा किसका सिंबल होने वाला है ये RX? एल्काइल हैलाइड है, हाँ सर, R एल्काइल ग्रुप है और X लेट से हैलोजन है. So RX you can just try to remember with the help of this type of box mechanism in presence of medium as dry ether. Its product is found to be RR, and let's say its product will be nothing but 2NaX. In this case, it has -1 oxidation number, या you can simply say apart from oxidation, ये कुछ ऐसा हाल फिलहाल अभी बॉक्स मैकेनिज्म याद रख सकते हो कि लेट्स से RR मिल जाएगा और ये NaX मिल जाएगा. So it is the preparation of any, symmetrical alkane. For example, if we have, let's say, 2CH3Cl plus 2Na in presence of dry ether as a medium, its product is CH3CH3 and its product is 2NaCl. रिएक्शन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वुर्ज रिएक्शन. Yes, sir. For example, let's say if I have to prepare, let's say N-butane. If you have to prepare N-butane, कौन सा रिएक्टेंट लेना पड़ेगा मुझे यहाँ? Do you think यहाँ जो रिएक्टेंट मुझे लेना है, it is 2CH3CH2Cl and 2Na in presence of dry ether? Yes, sir. Plus 2NaCl, है ना? लिखे हुआ है ऐसा? सर एक मिनट. हाँ सर. So ये कुछ वुर्ज रिएक्शन, you can say it is the first name reaction of organic chemistry, है ना? Preparation of alkane. बस if you see कि भाई ये जो limitation है इस रिएक्शन का, from here you can prepare only symmetrical alkane. Clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख के भी हो गया है ऐसा? यस सर हो गया. गुड, है ना? कुछ और नेम रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसा याद रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज लेट्स से 2RX, it is 2Na in presence of dry ether, it will give RR and 2NaX, and this reaction is known as, let's say, Wurtz reaction. ये जो reaction है, this reaction is known as, let's say, Wurtz reaction. Similarly, suppose if we have instead of alkyl,
if we have benzene and 2Na in presence of, let's say, dry ether, here product में भी ये एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन है, and let's say 2NaCl. ये रिएक्शन का नाम क्या है? फिटिग रिएक्शन. Yes or no? Yes, sir. अच्छा. Same if we have, let's say, benzene and let's say it is 2Na, and let's say suppose एक मेरे पास एल्काइल है, एक मेरे पास एराइल हैलाइड है, again solvent as let's say dry ether. Do you think its product may be ये कुछ ऐसा एल्काइल बेंजीन बन जाता? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें ऐसा आसान सा नाम है as per NCERT books is concerned. This reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. So you can say जब एल्काइल ग्रुप है तो नाम सिर्फ वुर्ज रिएक्शन है, जब बेंजीन वाला है तो उसका नाम फिटिग रिएक्शन है, एक एल्काइल है और एक बेंजीन है तो रिएक्शन इज वुर्ज-फिटिग रिएक्शन. क्लियर? Yes. थोड़ा लिख के हो गया ऐसा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर. एक मिनट सर. Yes, sir, done. Next में let's say second reaction is it is dehydrohalogenation. I hope ये कुछ बच्चों के लिए साथ ICSE बोर्ड में तो पक्का होता है 10th क्लास में ये रिएक्शन. Yes, sir. Yes, sir. Wurtz reaction भी था. हाँ सर. हाँ, वुर्ज रिएक्शन भी था ना. तो ये KVPY जो एग्जाम है वो टेक्निकली ICSE वाले बच्चों का ही एग्जाम है ना. तुम में से है ना काफी सारे बच्चे ICSE के? हाँ सर. Yes, sir. तो ये जो एग्जाम है टेक्निकली वो है ICSE वाले बच्चों का. उन लोगों ने बायो भी ठीक ठाक पढ़ा होता है, 11th क्लास के बहुत सारे चैप्टर 10th क्लास में पढ़ लिए थे शायद, है ना. Yes, sir. और मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ठीक ठाक ज्यादा पढ़ा होता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में. ठीक है. सो dehydrohalogenation, D means obviously removal of hydrogen as well as halogen. So if you see corresponding reaction, it is CH3, CH2 and Cl. Suppose when it is heated with alcoholic KOH, its product may be, let's say, this ethene, and this product can be KCl, and this product is H2O. So ethyl chloride in presence of alcoholic KOH and heat, it will give ethene plus KCl plus H2O. So this reaction is known as, let's say, dehydrohalogenation. Yes, sir. So यहाँ भाई एक Cl का रिमूवल हुआ है, यहाँ से H रिमूव्ड हुआ है. So hydrogen as well as halogen का रिमूवल है, it will convert into ethene plus KCl plus H2O. ऐसा लिख के हुआ है, समझा? Now suppose इस डिटेल्ड मैकेनिज्म तो हम लोग देखेंगे यार जब पढ़ेंगे अच्छे से. But suppose if it is CH2 and it is CHCl and CH3 when it heated with alcoholic KOH, यहाँ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं?
3 ना? यहाँ देखो जो प्रोडक्ट चार। बन सकते थे, R products. एक तो मेनली Four. इफ यू सी 4 नहीं बनेंगे। देखो एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, लेट्स से जिसका मैं IUPAC से नेम लिख सकता हूँ 1 ब्यूटीन, या लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट ये बन सकता है CHNCH3, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ लेट्स से 2 ब्यूटीन, और उसमें भी 2 ब्यूटीन में सिस एंड ट्रांस हो सकते हैं, है ना। 2 ब्यूटीन में सिस एंड ट्रांस हो सकता है, बट अगर मैं सिंपल समझने की कोशिश करूं तो 1 ब्यूटीन बन सकता है और 2 ब्यूटीन बन सकता है। यू नो, सजेस्ट मी इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। Butene major. मेजर 2 ब्यूटीन होगा, माइनर 1 ब्यूटीन होगा। क्यों होगा ऐसा? Symmetric nature. सिमेट्रिक नहीं ये होता सब Cl उसके ऊपर है ना, सेकंड वाले पे। अच्छा चलो, लास्ट क्लास में अगर तुम लोगों को थोड़ा याद हो, मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था तुम लोगों को, है ना। हाँ सर. यस, फर्स्ट वाले एल्कीन के लिए वी हैव हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? With respect to pi bond, you have to just count number of alpha hydrogens. So first wala molecule has how many hyperconjugating structure? Do you think we have 2 hyperconjugating structure? भाई with respect to pi bond जो कार्बन है उसमें 2 ही हाइड्रोजन तो है Yes बस। sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरे वाले केस में 2 ब्यूटीन कंसिस्ट हाउ मेनी hyperconjugating structure? 1. सब पढ़ाया खराब कर दिया तुम लोगों ने। Sorry, 2. 6 है sir. 2. 6 hyperconjugating structure with respect to pi bond। मेरे पास 2 अल्फा कार्बन है और सब मिला के उस पर 6 हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं। CH3 भी 2 जगह है। Yes, sir. हाँ sir. सो मेरे पास एक में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, एक में मेरे पास 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है इसमें से? सेकंड second one is more stable and thus it is found to be major product also, है ना। Yes, तो sir. ये जो 1 ब्यूटीन है इट इज फाउंड टू बी माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है, जो प्रोडक्ट शायद ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में बन जाना चाहिए। Yes sir. Yes, sir. अच्छा, नाउ सपोज एक एल्कीन मेरे पास कुछ इस टाइप का है, C डबल बॉन्ड H एंड H एंड H एंड H। एक एल्कीन में से यू नो इट्स वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम एल्काइल ग्रुप, लेट्स से R लिख देते हैं। अनदर मे बी लेट्स से इट इज, इसमें से और एल्काइल ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये R है और यहाँ भी लेट्स से ये R वाला ग्रुप है, और सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर देते हैं, इट इज लेट्स से डबल बॉन्ड एंड इट इज R एंड R, लेट्स से इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कर देते हैं। अगर वो H भी सब्स्टिट्यूट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। हाँ Yes. सर। ये सुनो, अच्छा हाँ sir. इन सब में से जो लीस्ट स्टेबल है वो कौन सा है? सेकंड लीस्ट स्टेबल। अच्छा, जो सपोज अगर मैं इस, हाँ अगर मैं इस सब जगह R को लेट्स से CH3 अगर बना दूं, सपोज कि भाई इसको मैंने CH3 बना दिया, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। तो कैन वी से यहाँ 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है और 9। यहाँ 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। Yes, sir. Yes तो sir. कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Last वाला. Last वाला। Last one. अच्छा, सो कैन वी से कि भाई ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, हाँ सर। हाँ sir. ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है ना। हाँ सर। तो कैन वी से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल? Yes sir.
Yes, sir. फाउंडेशन का एडमिशन मतलब फाउंडेशन वाले बच्चों को 19 पर बच्चों को फाउंडेशन में एडमिशन लेना है उनके लिए नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ट्रेनिंग चल रहा है। युवराज साहब ये लोग को किस बैच में डाले थे? अभी कहीं नहीं है, आरएमओ पढ़ रहा है बस। एक दिन हो गया वो पढ़ रहा है। लेक्चर कब से स्टार्ट हो रहा है? आपने ये लिखे हुआ है सर? नहीं सर। अच्छा, मतलब मैं इसको हटा के सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। हाँ सर। हाँ सर। So you can say more. More substituted alkene is, more stable. Due to, क्या लिख सकता हूँ ना रीजन में? Due to more number of hyperconjugating structure. Yes, sir. Due to more number of, let's say, hyperconjugating structure. और एक मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखा देता हूं, देखो ऊपर अब जाए ना। अकॉर्डिंग टू ये शायद किसी बच्चे ने नाम सुना होगा, सर्ट्ज़फ्स रूल था भाई आईसीएसई में, है कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं था। नहीं सर, ये नहीं था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सर्ट्ज़फ्स रूल, ये रशियन नाम है, तो इसको कुछ मतलब ऐसा भी लिखा हो सकता है, सर्ट्ज़फ्स, है ना? सो अकॉर्डिंग टू सर्ट्ज़फ्स या सर्ट्ज़फ्स रूल, ये कुछ ऐसा पता है कि नहीं पता कि भाई रशिया में कोब्स, जेब्स वो सब होता है ना, और वही उसी को ब्रिटिशर्स एफ पढ़ देते थे, है ना? सो सर्ट्ज़फ्स रूल ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, during dehydrohalogenation, more substituted alkene is found to be more stable. According to Sertjev's rule, during dehydrohalogenation, more substituted alkene is found to be more stable, is found to be major product. Is found to be major product. ये क्लियर है? सर्ट्ज़फ्स रूल। हाँ सर। जैसा एक दो एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूँ जिसमें तुम लोग मेजर प्रोडक्ट शायद प्रेडिक्ट कर पाओगे। ऐसा, if we have, suppose यहां मेरे पास ब्रोमीन है and it is treated with alcoholic KOH and heat, तो यहाँ दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन सकते थे। एक तो ये कंपाउंड बन सकता था एंड ऑब्वियसली यहाँ एक ये कंपाउंड बन सकता था। सेम इफ वी हैव, लेट्स से ब्रोमीन here, when treated with alcoholic KOH and heat, इसमें अगेन लेट्स से मेरे पास एक प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन सकता था and another product may be like this. First वाले केस में which one is found to be major product according to Sertjev's rule?
फर्स्ट वाला कंपाउंड इज फाउंड टू बी मेजर प्रोडक्ट, हाँ सर, और ये वाला जो कंपाउंड हो जाता इट शुड बी माइनर प्रोडक्ट। सेकंड वाले केस में फर्स्ट फर्स्ट हाँ वाला सर, क्या है, माइनर मेजर? मेजर मेजर सर। फर्स्ट वाला इज फाउंड टू बी माइनर प्रोडक्ट, कैसे? सेकंड वाला इज फाउंड टू बी मेजर प्रोडक्ट। तो अगर कोई कंफ्यूजन है कभी भी तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट कर लो। ओके जैसा इन द केस ऑफ फर्स्ट वाले केस में यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है एंड यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो सब मिला के यहाँ 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है इसके। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, यहाँ इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कैन वी से फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? यस सर। ऐसा ही सेकंड वाले केस में 2 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ मेरे पास 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं और यहाँ 8 थे। So in whichever case we have more number of hyperconjugating structure, alkene will be relatively more stable. Clear? यस सर। तो यहाँ किसी बच्चों को डाउट है? बस ये समझ लो यार, जब हम लोग IIT जेई या नीट के लिए पढ़ेंगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एक पूरा लेक्चर निकल जाएगा इसके लिए, है ना? यस सर। हाँ, बट अभी केवीपीआई के लिए ठीक है। कोई क्वेश्चन आ जाए तो यार कर लो शायद, है ना? हाँ सर। ठीक है, लिख के वर्ड खत्म। 2 मिनट सर। Done. Okay, next is third reaction. It is dehydration. Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohols. डिहाइड्रेशन का तो शायद मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है डिहाइड्रेशन? Removal of water. Removal of water. So for example, if we have CH3, it may be OH, it is CH3 and it is CH3. When this alcohol treated with concentrated H2SO4 and heat, तो कुछ ऐसा सब बच्चों को आइडिया है बेटा? कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हाँ सर। सर Yes, sir. ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और यहाँ ये कुछ ऐसा एल्कीन बन जाता ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, है ना? ये कुछ ऐसा एल्कीन बन जाता ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। यू नो, इट आल्सो फॉलो you know, Sturgeon's rule. Sturgeon's rule का मीनिंग क्या था? More substituted alkene should be more stable, है ना? So it also follows Sturgeon's rule. If you see few basic mechanism of the reaction, इसे थोड़ा और समझ में आएगा। It may be CH3, CH3 and CH3 and OH. Do you think this compound can behave as a Lewis acid or Lewis base? थोड़ा ये कंपाउंड लुईस एसिड है कि लुईस बेस है? बेस। बेस। ये लुईस बेस है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम
in presence of, let's say, acidic medium, do you think ये convert हो जाता कुछ इस type का OH2 plus? नहीं, coordinate bond बना लेता, देखो ये ऐसा, जैसे H2O का H3O plus बन जाता है भाई, नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Further, you can imagine ये वाला bond यहाँ से टूट जाता, and इस step में it get converted into, ये हो जाता CS3, ये हो जाता CS3, and carbon having positive charge. Clear? तो ये this intermediate is known as carbocation. This intermediate is known as carbocation. This carbocation can lose H plus and it will convert into CH3. It is double bond CH2 and it will be CH3. लिकीन बन गया ना, तो वहां जो इंटरमीडिएट है इट विल बी कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट. ये जो कार्बोकैटायन है, कैन यू सजेस्ट मी इट हैज हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? 6. 6. 6. ये 6 कैसे बता रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आया. या तो तुम 9 बोलो या 3 बोलो, 6 की कैलकुलेशन नहीं समझ में आया मुझे. यस प्रीतन, बड़े 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं. हर एक कार्बन पे जो C+ से जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है? सर एक्चुअली वो फाइनल स्ट्रक्चर का बोल रही थी. फाइनल स्ट्रक्चर नहीं, जो ये कार्बोकैटायन, हाँ फाइनल जो स्ट्रक्चर है उसमें पक्का 6 हाइपर कॉन्जुगेट. हाँ सर, इस पे तो 9. कार्बोकैटायन में वी हैव 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. यस सर. यस सर. तो कैन वी से जिस अल्कोहल में भी ये जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा कि स्लो होगा? स्लो होगा. होगा. क्या बात कर रहे हैं? अगर मेरे पास कार्बोकैटायन जितनी आसानी से बन जाएगा, डू यू थिंक डिहाइड्रेशन उतना फास्ट है? इसी स्टेप में रिमूवल है ना H2O का, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन. जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, डू यू थिंक उतनी आसानी से वो H2O लूज करके कार्बोकैटायन बन जाएगा? हाँ सर, हाँ सर. यस सर. बड़े मैकेनिज्म से पहले वाला पार्ट लिख लिया सब कि नहीं? यस सर. गुड. So यहाँ can we say rate of dehydration of different alcohols? Rate of dehydration of different alcohols. एक अल्कोहल यू कैन इमेजिन मेरे पास इस टाइप का है. अनदर अल्कोहल में बी, यहाँ H है, यहाँ CH3 है एंड यहाँ OH है. अनदर अल्कोहल में बी, it is CH3, CH2 and CH2 and CH2 and OH. Suppose मेरे पास कुछ ऐसे अल्कोहल्स हैं. Can we say this alcohol is 3 degree alcohol? यहाँ जो OH है वो डायरेक्टली टर्शरी कार्बन से कनेक्टेड है. This alcohol is 2 degree alcohol as OH is directly connected with 2 degree carbon here. And this alcohol, can we say it is 1 degree alcohol as OH is directly connected with 1 carbon only? Yes sir. So out of these 3, can you suggest me which one have fastest rate of dehydration? Tertiary one, then secondary, and then primary. Tertiary, then secondary, then primary.
as intermediate carbocation is more stable in the case of tertiary alcohol than secondary alcohol than primary alcohol. Yes, sir. थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. Now suppose if we have CH3, you know, CH2, it is CHOH. Yeah, you know, it is C and CH3. It is CH2, CH3 and OH. When this compound is treated with concentrated H2SO4 and heat, so you know how many different alkenes can be formed? यहाँ कितने एल्कीन्स बन जाते वो तुम लोगों को बताना है मुझे, है ना? 3. 3 नहीं सर, 2 सेम हो गया. 2. तो देखो यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स बन सकते थे मैं सबको ड्रॉ कर सकता हूँ. एक एल्कीन यहाँ बनेगा CH3 CH2 C double bond CH2 and CH2 and CH3. Yes or no? Yes, sir. Plus another alkene possible may be CH3 CH2. यहाँ आ जाता CH3. यहाँ do you think HNCH3 plus technically अगर मैं ड्रॉ करूं तो CH3 CH2, यहाँ CH3, यहाँ CH3 एंड यहाँ H. अभी लिखे हुआ है सर? नहीं सर, 2 मिनट. अच्छा मुझे ये बताओ जो सेकंड एंड थर्ड है उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? सेम है ना सर? ना सेम नहीं है. जैसा एक में मैं अगर बताने की कोशिश करूं फिर से तो यहाँ CH3 एंड CH3 सेम साइड पे है कि अपोजिट साइड पे है? डबल अपोजिट साइड पे. और देखो यहाँ CH3 एंड CH3 ये सेम साइड पे है कि अपोजिट साइड पे है? C डबल बॉन्ड C के सेम साइड पे. सेम साइड पे. थोड़ा धीरे समझेंगे, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. सो टोटल यहाँ मेरे पास 3 एल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड. टोटल यहाँ 3 एल्कीन्स बन सकते हैं ऐसे. लिखे हुआ है सर ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है या कंपलसरी तीनों 3 बनेंगे? मतलब तीनों के तीनों बनते हैं, बस ये अलग कहानी है कि उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा, 2 माइनर प्रोडक्ट होंगे, है ना? ओके सर. ये कंफर्म है तीनों ही बनेंगे, है ना? मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे हम लोग समझेंगे. खेल ये है कि हमेशा बस मुझे मेजर प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना होगा क्वेश्चन में. हमेशा क्वेश्चन में मुझे मेजर प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना होगा बेटा. So sir, in this reaction the first one is the major product ना?
अच्छा बेटा, Sir, in this reaction, the first one is the major product. इस वाले रिएक्शन में भाई 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है और सेकंड एंड थर्ड में, बस सेकंड एंड थर्ड में तो 3 3 एंड 2 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें। थोड़ा ये समझा कि नहीं? Yes, sir. लिख के भी हो गया है ऐसा? हाँ sir. Yes, sir. Now next reaction, next preparation thing can be reduction of alkyne. Reduction of alkynes. So this may be any typical alkyne. It is C and R dash when it is treated with hydrogen in presence of palladium, platinum or nickel. यही पढ़ा है बेटा हाइड्रोजनेशन कभी कि नहीं? बेटा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर। ये तो सारे बोर्ड्स में था, शायद नहीं था ये जूनियर क्लास में कहीं? हाँ सर। हाँ। चलो इसका मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है इट इज H and it is R dash, it is H and H. Do you think ये कुछ ऐसा एल्केन बन जाएगा यहाँ? Yes or no? ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा? But during addition of hydrogen, if you use palladium which is coated with BaSO4 or sulfur, it is also known as poisoned palladium catalyst. What is the meaning of promoter of the catalyst and poison of the catalyst? सर प्रमोटर मतलब कि वो स्पीड और बढ़ा देगा। प्रोमोटर कैटलिस्ट को हेल्प करता है। यस, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ना। और ये पॉइजन क्या करेगा? एफिशिएंसी को घटा देगा। एफिशिएंसी को कैटलिस्ट के कम कर देगा, है ना? यस और नो? यस सर। So ये poisoned palladium or this reagent is also known as Lindlar's reagent. In this case product can be, यहाँ ये जो product है वो let's say जो product है this can be alkene. So एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते तो एल्केन बन जाता, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते तो ये कुछ ऐसा एल्कीन बन जाता है ना। और ये सिस एल्कीन है कि ट्रांस एल्कीन है बेटा? यहाँ ट्रांस। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ दोनों स्मॉलर ग्रुप सेम साइड पे है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिस एल्कीन. Now same compound when treated with, it is let's say alkali metal dissolved in liquid ammonia. क्या कलर होता है इसका? तुम लोगों ने शायद KV5 के लेक्चर कुछ पढ़ा हो। alkali metal and alkaline earth metal dissolved in liquid ammonia. क्या कलर है इसका? एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है कि नहीं KVI में तुम लोगों ने अभी?
कलर्स के बारे में तो नहीं नहीं पढ़ा सर। अच्छा, ये वाला नहीं पढ़ा अभी, है ना? यार ये कुछ ऐसा पढ़ा, ब्लू लाइट कलर सॉल्यूशन होता है, पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं? नो सर, एक बार स्कूल के लेक्चर में सुना था। अच्छा, एक बार स्कूल के लेक्चर में सुना था, चलो ये अच्छी बात है ना? कहीं तो बच्चों ने सुना हुआ है ना? चलो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। अगर स्कूल के लेक्चर में सुना तो यहाँ तो पक्का सुन सकते थे हम लोग। ये जो रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन ऐसा हो सकता था, सोडियम सॉलिड व्हेन डिसॉल्व इन अमोनिया, ये कुछ ऐसा बन सकता था, Na+ and X mole of ammonia is attached to sodium and it is electron and you can say it is NH3Y, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता होगा कि डायामैग्नेटिक होता होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये लाइट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है बेटा ना, दिस इज ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ये कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा? कंडक्टिंग हुआ। ये कंडक्टिंग होगा, बिल्कुल कंडक्टिंग होना चाहिए। नाउ कैन वी से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? हाँ भाई, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यस सर। अच्छा, सो यहाँ जो प्रोडक्ट है, डू यू थिंक यहाँ H आ जाता, यहाँ H आ जाता, यहाँ R' हो जाता, and this product is nothing but transalkene. It is name reaction known as, क्या पढ़ेंगे इसको? बर्च रिडक्शन। हाँ, मतलब बिर्च नहीं पढ़ना, कई बार ऐसा वो साउंड गाली जैसा होता है ना? तो बर्च रिडक्शन है उसका नाम, है ना? तो थोड़ा सा शायद ऐसा कुछ याद रख पाओगे यार तुम लोग। लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, बट बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर? यस सर। बहुत अच्छा बच्चे, लिख के हो गया है ऐसा? सर एक मिनट। यस सर, डन। गुड। चलो कुछ टेस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं, फिर रिएक्शंस देख लेंगे उनके। टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसा सपोज मेरे पास एक कुछ ऐसा लिख लेते हैं। एक है मेरे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, जो शायद उन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा था बेटा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन? यस सर। हाँ, किस से हम लोग किस से टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन? ब्रोमीन वाटर रिएजेंट। यस, ब्रोमीन वाटर टेस्ट था। और दूसरा कौन सा था? बेयर्स रिएजेंट, है ना? सो अनदर इज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। आई होप ये दो टेस्ट हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, मुझे दोबारा नहीं बताना चाहिए इसको, है ना? ठीक। सेकंड इज टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। अच्छा, टर्मिनल एल्काइन का मतलब होने वाला है
जहां ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे हो, है ना? यही अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड यहां होता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3, सो कैन वी से ये वाला जो कंपाउंड है मेरे पास, ये वाला जो कंपाउंड है मेरे पास, ये टर्मिनल एल्काइन है, और ये वाला जो मेरे पास कंपाउंड है वो नॉन टर्मिनल एल्काइन है। Yes, sir. अच्छा, इन द केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन, है ना, टर्मिनल एल्काइन क्या करता है, when CH3 CH2 and CH type treated with either, ये सिंपली लिखा हो सकता था AZ प्लस, या ये लिखा हो सकता था AgNH3 ट्वाइस इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कैटायन, और it may be in presence of Cu plus cuprous ion. It can give CH3 CH2 C minus and Az plus इसका white precipitate, एंड सिमिलरली अगर ये Cu के साथ होता तो ऐसा ही Cu प्लस का इट गिव रेड precipitate. So it is the characteristic test of terminal alkyne only. ये सिर्फ टर्मिनल एल्काइन का ही कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है बस, है ना? हाँ सर. लिखे हुआ है सर? तो 2 मिनट। भाई आज क्या खेला इंडिया ना? हाँ सर. सही तो है भाई आज। सर पुजारा ऋषभ- क्या खेला? हाँ सर. पुजारा कितनी पड़ी सर, उसको फिर भी ऋषभ खेला पंत ने गया। अच्छा सर वो खेला इस नो बार। शॉट वाला मस्त अपील उन्होंने किया था. सर But- ऋषभ पंत ने अच्छा मारा इस बार। ऋषभ पंत जो वो चलने का है उसका, जब खड़ा रहा पिच पे तो रन बनते रहेंगे, नहीं तो चलता बनेगा भाई वो, है ना? हाँ सर। आइदर वो वनडे हो या टेस्ट मैच हो, ओवर 10-15 ओवर अगर खेल जाए तो इंडिया जीत जाएगा। हाँ सर। सर लास्ट टाइम ड्रॉ हुआ था सर, वो अच्छा था मैच। ड्रॉ वाला ज्यादा अच्छा था, ये ठीक है, ये भी अच्छा है। हाँ सर। बट चलो, मतलब थोड़ा तो दुनिया में कुछ डिफरेंट न्यूज आ रही है ना? वरना अचानक से तो इतना कोरोना चल रहा था, है ना, कि फैमिली और अभी- मेंबर्स को क्या, अभी वैक्सीन की बातें होंगी जल्दी. हाँ वैक्सीन भी सब, अब ये बातें भी धीरे धीरे होनी बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना? फिर से बैक टू नॉर्मल सिचुएशन होगी जल्दी। अच्छा, अब सब हो गया ना, सिनेमा हॉल में मूवी लगना स्टार्ट हो गया है, अभी सूर्यवंशी लगने वाला है ना? हाँ सर, वंडर वुमन भी लगी थी। अच्छा, और हमारे फिजिकल लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे? हाँ बस वही बचा हुआ है यार, शायद 31 तक गवर्नमेंट ने होल्ड पे डाला है बेटा, है ना? सर पहले तो स्कूल जाने से अजीब लगता था, अभी जाने का मन कर रहा है। यस सर। हाँ यार, मतलब देखो शायद ना फेब
फेब फर्स्ट से पक्का पक्का है ना, पक्का पक्का मीन्स जो अब एग्जाम्स होंगे ना उसके लिए स्कूल पहले बुलाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब वो अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी भी ना, तो जब वो टेस्टिंग उस्टिंग होनी ना अचानक से बंद हो गई है ना। तुम्हारी फैमिली में नहीं हुआ, मेरी फैमिली में तो हुआ कि मैं बीमार पड़ा बट मैं टेस्ट कराने के लिए नहीं गया, है ना। सर मैं पिछले साल एक बार भी बीमार नहीं हुआ। अरे बढ़िया, गुड। हाँ, लोगों ने ख्याल भी रखा भाई, लोगों ने ख्याल भी रखा है ना फिर उस चक्कर में कि भाई ठंडा नहीं पीना है, अंदर ख्याल रखा है भाई, फ्रिज का पानी नहीं पिया लोगों ने, है ना। और सुबह सुबह गर्म पानी। मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ। 3 दिन से बीमार है, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा कि भाई अब शायद लोग ना टेस्ट उस्ट भी नहीं करा रहे, मतलब ठीक है, मतलब हो जाएगा ठीक है ऐसा करके। तो स्कूल खोलना अब इसलिए मुझे ठीक लग रहा है यार। देखो जब नॉर्मल सर्दी खांसी भी होती थी तो भी दूसरे बच्चे को हो जाता था कि नहीं होता था? होता ही था यार। स्कूल में तो वो चलन ही है ऐसा, है ना। हाँ सर। मतलब क्लासरूम में अगर 2-3 बच्चे बीमार, तो हमें सर्दियों में तो हमेशा बीमार रहते हैं 2-3 बच्चे, नहीं खांसते रहते थे, छींकते रहते थे, हैंकी से एग्जाम के नोज टाइम पे पूछते रहते थे, है ना। एग्जाम के टाइम पे सर जानबूझ के खांसते रहते सर। 2-3 बच्चे तो मैं देखता हूँ हर क्लास में ऐसे रहते ही रहते थे, है ना। हाँ सर। तो अभी भी मुझे लगता है शायद वैसा ही हो गया, 2-3 बच्चों को परेशानी होती रहेगी, बाकी बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, फिर ठीक होंगे, सब चलेगा ऐसा, है ना। हाँ फिर से मीडिया ने अगर हल्ला मचा लिया उस चीज को लेके तो फिर गड़बड़े पानी, है ना। सर अभी तांडव का चल रहा है ना। क्या तांडव का चल रहा है? ये क्या है? अरे उस पे अरे सर वो तो अमेजोन प्राइम पे है। भाई साहब ये कौन बच्चा है जो अमेजन प्राइम में देख रहा है आजकल? सर्वेश। अर्चित है ये। सर मैंने बोला अर्चित। अर्चित नालायक, ये सब तेरा देखने का टाइम है तेरे पास? सर मैं देखता नहीं, वो पापा न्यूज देखते तो उसमें सुन लेता हूँ। अच्छा, तो लगता है तुम्हें पापा से बात करनी पड़ेगी मुझे, घर पे टीवी कैसे चल रहा है तुम्हारे साथ में, है ना। सर न्यूज देखते हैं ना पापा खाते समय। अबे न्यूज भी नहीं देखना चाहिए आजकल, जब बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है तो, है ना। और किसके घर पे टीवी चलता है जरा बताओ मुझे जरा। सर टीवी क्यों नहीं चलेगा, पढ़ाई तो हम एक स्पेसिफिक स्लॉट पे करते हैं। अबे नहीं, दिन रात पढ़ाई का खेल है भाई, आईटी प्रिपरेशन या ये सब जो पढ़ रहे हो ना, ऐसे में पेरेंट्स टीवी बंद करके अंदर रख देते हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? सर मेरे काट साथ देते हुआ सर है। वो। सर मेरा तो ना 8 से बंद है टीवी, बस एक अंदर का चलता है, वहाँ पे अलाउड नहीं जाना। सर अच्छा। मेरे तो पूरे फैमिली में टीवी नहीं चलता, मीन्स लाइक फोन दे रखा है, बोला जो काम करना है क्लास के बारे में उसमें करो वरना ले लिया जाएगा। बहुत अच्छा है ना। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं, नहीं तो पिटाई होगी, है ना। सो ये टेस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन में टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन जैसा, अगर मैं सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है, देखो यहाँ मेरे पास कंपाउंड है एक C2H6, एक मेरे पास कंपाउंड है सपोज इट इज C2H4, और एक कंपाउंड है सपोज मेरे पास C2H2। तो ये 3 हाइड्रोकार्बन है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं शायद, है ना। तो ये मेरे पास लेट्स से एल्केन है, ये मेरे पास लेट्स से एल्कीन है, और ये मेरे पास लेट्स से एल्काइन है सपोज, है ना। है कि नहीं इसमें? अच्छा, ये अगर मुझे इसमें से डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, इसको ले लेते हैं कि भाई मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। मुझे नहीं पता था कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। सो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ A, B and C is treated या passed through bromine water, is passed through bromine water। इसमें से A, B, C में से कैसे डिफरेंशिएट हो पाएगा बेटा इसमें? सर एल्किन डिफरेंशिएट हो जाएगा और C2H4 C2H2 सर वो दोनों रह जाए मतलब एटलीस्ट इसमें एक बन जाएगा और यहां से शायद B एंड
C A कॉम्बिनेशन बन सकता है ना? यस सर। यस सर। मतलब A मेरे पास ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाएगा और B एंड C ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, है ना? नहीं, सो ये कैन डीकलराइज लेट्स से Br2। ऐसा ही सपोज ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इफ सपोज इट इज पास्ड थ्रू AgNO3, तो यहां भी मेरे पास फिर B अलग हो जाएगा और C अलग हो जाएगा, है ना? कौन इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, B या C? C। तो C मेरे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा और यहां हो जाता लेट्स से नो रिएक्शन। क्लियर? सर हमें 10th में ये रिएक्शन था, पर इसके जगह हम लोग को अमोनियाकल AgCl था। हाँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ना। हाँ सर। अमोनिकल सिल्वर ये था 10th क्लास में। हाँ 10th में प्रैक्टिकल करना था सर। कॉपर वाला भी था। तो यही होता है बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की रिएक्शन से ये बन जाता है, देखो AgNH3 ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस, है ना? यस सर। उसको हम लोग बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। याद है, एक दिन पढ़ भी रहे थे शायद हम लोग ये। हाँ सर। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज टोलेंस रिएजेंट। यस सर। तो आइदर यू कैन सिंपली टेक AgNO3, उससे भी होगा बेटा ना, कोई भी Ag प्लस फ्री आयन चाहिए बेसिकली। ओके सर। ये लिखा है ऐसा सर क्यूप्रस क्लोराइड से हो सकता है ना? यस, क्यूप्रस क्लोराइड भी हो सकता है। Cu प्लस मुझे चाहिए तो उससे रेड प्रेसिपिटेट बन जाता। हाँ सर। मुझे लगता है 10th क्लास तो सारे बच्चों को ICSE पढ़ना चाहिए ना। थोड़ा शेक्सपियर वहां से हटा दे तो नहीं, मुझे लगता है शेक्सपियर अगर हटा देंगे तो बोर्ड अच्छा है। हाँ सर, सर, ये मूवी बहुत नहीं सर, दिक्कत बहुत अच्छा था। क्या बात कर रहे हैं? शेक्सपियर अच्छा हाँ था। सर, बहुत मजा आता था पढ़ने में। स्टोरी टेलिंग भी था ना सर बहुत बोरिंग है, बट बहुत मजा आता है बाद में। उसका तो आजकल कोई यूज भी नहीं है ना, वो वाले इंग्लिश का। सर वो बहुत खतरनाक था। हाँ मतलब मैंने तो CBSE से किया है, बट मुझे पता है कि बच्चे वो सब बोलते रहते हैं, फालतू का इंग्लिश पढ़ा रहते हैं वहां से। तो CBSE का बहुत इजी रहता है। हाँ, CBSE सबसे आसान महाराष्ट्र बोर्ड होता है ना। सर इसलिए तो सर 11th में आने का सर ICSE वाले प्रिविलेज्ड होते हैं। ICSE वाले क्या है? प्रिविलेज्ड होते हैं। वो प्रिविलेज होता है उनको। अच्छा सर, उनको सर थोड़ा आइडिया रहता है सर। पढ़ना भी पड़ता है उन बच्चों को, है ना? ठीक है, चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट में, इफ वी हैव बेंजीन, लेट्स से benzene when treated with bromine water, benzene when treated with KMnO4 in basic medium, ये बेयर्स रिएजेंट है ना। बेयर्स रिएजेंट ऐसा ही when benzene treated with, simply you can say if it is H plus / H2O, acidic water, and if it is treated with hydrogen in presence of nickel, it is high pressure and low temperature. फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? Br2 and bromine, मतलब ब्रोमीन वाटर से बेंजीन, so no addition. Similarly, no addition here.
So although benzene is, unsaturated hydrocarbon, but it does not give normal test of unsaturation. क्यों नहीं देता होगा यहाँ एडिशन रिएक्शन? क्यों नहीं एडिशन रिएक्शन होता होगा बेंजीन में? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है सर। मैं देख रहा था यार, इससे पहले मैं मूवी की बातें कर रहा था, वेब सीरीज की बातें कर रहा था, तब बड़े बच्चे इंटरेक्टिव थे, है ना? अब मैंने ये पूछ लिया अचानक से कि क्यों एडिशन, तो मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही उधर, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये क्यों नहीं एडिशन होता होगा यहाँ? देखो, आपको जो कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा पढ़ा है कि भाई ये मतलब नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है बेंजीन में? हाँ सर 1.5 वाला। हाँ सर 1.5 so it is resonance hybrid, है ना? It is stable compound aromatic, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना? Aromatic compound usually should not give addition reactions. Yes sir. ऐसा यहाँ भी नो हाइड्रेशन, यहाँ भी वाटर ऐड नहीं होता, है ना? But at high temperature, high pressure and low temperature, it can give addition reaction, it can give hydrogenation reaction. और कितना होता है कुछ याद है इसका? डेल्टा एच। वैसे गलत क्वेश्चन पूछा मैंने तुम लोगों से कि -208 किलोजूल पर मोल था। कुछ याद है? वो 120 होता था एक पाई बॉन्ड का, तो 3 पाई बॉन्ड का 360 हो जाना चाहिए था। हाँ सर, वो वाले क्वेश्चन में था। यस, बट 152 रेजोनेंस एनर्जी होता है बेंजीन का, तो 360 में से अगर 152 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 208 आ जाएगा। क्लियर है? सर मुझे वो कंप्लीट डबल बॉन्ड वाला नहीं समझा, नॉर्मल डबल बॉन्ड वाला बेंजीन का। बेटा बस ये समझ सकती है कि बेंजीन, देखो मेरे पास जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे ना, तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन पढ़ेंगे, और फिर एक बेंजीन पढ़ेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अभी के लिए तो हाल फिलहाल बस ये समझ सकती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डज नॉट गिव नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। So there is a difference between aromatic hydrocarbon and olefins. Olefins किसको बोलते हैं हम लोग? Olefins? Olefins and paraffins. हाँ ये सुना है। Paraffins alkane है ना? हाँ सर। अरे देखो कितने गंदे बच्चे तुम लोग। तो पैराफिन्स होता है एल्केन और ओलिफिन्स होते हैं एल्कीन्स, है ना? हाँ सर, ऑयल फॉर्मर्स वाले। हाँ सर, ऑयल मिलता है। ठीक, ये लिखे हुआ है बेटा, समझा ऐसा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन देख लेते हैं, है ना? एडिशन ऑफ HX to alkene. Addition of HX to alkene. So if we have, let's say, any alkene, when it is treated with HX, so due to addition, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो सकता था। Can we say it is just opposite reaction of dehydrohalogenation? भाई ऑब्वियसली अगर मैं प्रोडक्ट का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दूं तो वो एल्कीन बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये एल्कीन पे HX का जो एडिशन में करता, तो वहां मेरे पास एक पे H ऐड हो जाता और एक पे X आ जाता। लिखे हुआ है सर? Now suppose if we have
CH3CH and double bond CH2, and when it is treated with HBr, it has partial positive charge, it has partial negative charge. है कि नहीं है? ये पोलर बॉन्ड है. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताना बेटा, ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पे पहले H प्लस ऐड होना चाहिए कि ब्रोमीन ऐड होना चाहिए? बेटा H प्लस ऐड होना चाहिए कि ब्रोमीन वहां ऐड होना चाहिए? ब्रोमीन। देखो, एक तो ये समझो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दे ऑलरेडी कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज. पाई इलेक्ट्रॉन पे डू यू थिंक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है? हाँ सर, H प्लस। तो HBr में जो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ब्रोमाइड आयन को रिपेल करेगा. यस सर। सो पहले H प्लस ऐड होना चाहिए यहाँ. तो ये बन जाता CH3, या तो बन सकता था ये वाला कार्बोकैटायन, या ये बन सकता था डू यू थिंक ये वाला कार्बोकैटायन ड्यू टू रिमूवल ऑफ ब्रोमाइड आयन, डिपेंडिंग H प्लस कौन से कार्बन से जाके अटैच हुआ है. यस और नो? यस सर। अच्छा, अब इन दोनों में से, दोनों कार्बोकैटायंस में से which कार्बोकैटायन is found to be more stable? First वाला. It consists 6 hyperconjugating structure and it consists 2 hyperconjugating structure. So can we say it is found to be more stable due to more number of hyperconjugating structure, and it is found to be relatively less stable due to less hyperconjugating structures? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, bromide ion will attack as a nucleophile here, और ये हो जाता लेट्स से CH3 and bromine, and same bromide ion will attack as a nucleophile here, और ये हो जाता CH3 CH2 and CH2 and bromine. Can you suggest me कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है इन दोनों में से? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला. This one should be major product and this one should be minor product. ये समझ में आ रहा है कि जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा एज ए इंटरमीडिएट, इट शुड गिव मेजर प्रोडक्ट. Yes, sir. Yes, sir. नाउ ऐसा भी समझ सकते हो तुम लोग, एक रूल अकॉर्डिंग टू Marconi-Kopp's rule, again Russian है ना. According to Marconi-Kopp's rule, during addition of HX to unsymmetrical alkene in major product H will be added to carbon which already consist more number of hydrogen. According to Marconi-Kopp's rule,
during addition of HX to unsymmetrical alkene, in major product H will be added to carbon which already consists more number of hydrogen. ऐसा लिख के हुआ है तुम लोगों का? एक मिनट सर। तो या तो मैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का बेटा स्टेबिलिटी कंपेयर कर लूं, या मैं सीधे मार्कोनी-कोप्स रूल से भी मेजर प्रोडक्ट बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, if it is CH3CH and double bond CH2, and if it treated with HBr, second is it is CH3 and this may be another CH3 and double bond CH2 when treated with HCl. Similarly, if it is let's say benzene and CH2 when treated with HBr. Similarly, if it is CH3, CH2, CH, CH and CH3 when treated with let's say HCl. चलो इनके लिए मेजर प्रोडक्ट बताना पड़ा तुम लोगों को कहाँ जाएगा ना। इन सब के लिए you have to find out major product of the reaction. जैसा फर्स्ट वाले केस में अभी मेजर प्रोडक्ट में ब्रोमीन कहाँ जाएगा बेटा? सी के पास। यहाँ जाना चाहिए शायद CH3, ये हो जाता CH and Br and CH3. Yes or no? इस वाले केस में it is CH3 and Cl and CH3. ऐसा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वाले केस में if it is CH, bromine and CH3. अच्छा, इन तीनों केसेस में ऑब्वियसली मार्कोनी-कोप्स रूल फॉलो भी हो रहा है ना। H मेरा डायरेक्टली वहां जाके अटैच हो जाना चाहिए, उस कार्बन से जाके अटैच हो जाना चाहिए which already consists more number of hydrogen. Yes, sir. अच्छा, लास्ट वाले मॉलिक्यूल के लिए भी मैं मार्कोनी-कोफ एडिशन अप्लाई कर सकता हूं क्या? मार्कोनी-कोफ्स रूल, उसमें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही है भाई, है ना। मींस मेरे पास यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां Cl, यहां CH2 एंड यहां CH3 प्लस another is CH3, CH2 and CH2 and CHCl and let's say CH3.
ये दो प्रोडक्ट बन सकते थे। कैन यू सजेस्ट मी दोनों में से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? यहाँ सेकंड वाला रहेगा मेजर। सेकंड वाला मेजर है, ये वाला, और ये माइनर है। हाँ क्यों है ऐसा? ये आंसर तो सही है बेटा, है ना? सर वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग कार्बन का वो अप्लाई। वेरी गुड, है ना? तो मैं इसका अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन देखूं, तो एक का जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इट इज CH2 and CH3, एंड इवेंचुअली Cl माइनस अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एंड सिमिलरली इफ वी हैव CH3 CH2 and CH2 and CH plus and CH3, डू यू थिंक यहाँ Cl माइनस अगर ऐड करेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा? यस सर। अच्छा, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है? फर्स्ट वाले केस में वी हैव 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले केस में वी हैव 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? Yes, sir. Okay. So this carbocation is found to be more stable and major product यहां से बनेगा, है ना? क्लियर? Yes, sir. भाई एडिशन रिएक्शन करके हुआ है तुम लोगों का कि नहीं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ इट इज CH3CH and double bond CH2 plus HBr in presence of peroxide। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई KVPY में एकदम लास्ट में क्यों पढ़ाना चाहता था? शायद कुछ याद रह जाए, नहीं? मतलब 31 तक शायद लास्ट के कुछ नोट्स याद रह जाए, है ना? हाँ सर। बाकी ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन, जेईई प्रिपरेशन में। तो सपोज यहाँ कोई पेरोक्साइड होता, फॉर एग्जांपल इट इज H2O2। यहाँ मेजर प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी this one as major product। ये इसका मेजर प्रोडक्ट था। CH3CH double bond CH2 plus HBr in presence of peroxide gives CH3CH2 CH2Br and it will be the major product। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है? मेजर प्रोडक्ट के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ, जहां मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो माइनर था वो ये मेजर बन गया इसमें, है ना? यस सर। अच्छा, so in this case as per this product is concerned, it is found to be anti Markovnikov addition। It is anti Markovnikov addition। So you can say in presence of peroxide addition of HBr
addition of HBr follow, you know, anti-Marconi-Cox. Follow anti-Marconi-Cox rule बोल सकते हैं हम लोग, है ना. Follow anti-Marconi-Cox rule, also known as you can say it is peroxide effect, और किसी बच्चे को कुछ और नाम नहीं पता है इसका. एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले टाइम ये इफेक्ट देखा, खरैश इफेक्ट. सर known इतने as अजीब अजीब peroxide नाम क्यों है? effect और खरैश इफेक्ट. सर इंडिया का कोई नहीं. अगर इंडिया नहीं है, ये सब रशियन है. सर कोई सर नहीं इतने है क्या? अजीब अजीब नाम क्यों होता है उनका? अच्छा, एक यूनिवर्सिटी थी यार रशिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कजान. अब कहाँ है रशिया में एग्जैक्टली खोजना देखना पड़ेगा. यूनिवर्सिटी ऑफ कजान में यू नो केमिस्ट्री को लेके बहुत कुछ हुआ है ना. जितने भी सब ये है, मार्कोनी-कोप्स, सडजेफ, कजान्स, ये सब मतलब ये खरास, ये सब लोग कजान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे भाई. यस सर. अब बोलते तो यार इंडियंस ने भी काफी किया है शायद, है ना. एक तो कौन सा युजुर्वेद है ना, जो शायद ये सब हाँ सर बहुत पहले हो गया था केमिस्ट्री ये और सब. बायोलॉजी को लेके कुछ है. रामानुजस प्लॉट. हाँ किया है, बट शायद यू नो पता नहीं है सर किसी को. वो सभी हाँ कभी पब्लिश नहीं हुआ शायद, एंड देन ब्रिटिशर्स आए तो सब कुछ उन्होंने जला उला दिया, कुछ ऐसी कहानी है शायद, है ना. हाँ. बट कुछ तो किया होगा यार वी इंडियंस, तो मतलब हम लोग. बोस आइंस्टाइन कंटेंट. हाँ शायद अर्ली ह्यूमन बीइंग्स में से हैं शायद हम लोग, है ना. बाय सिविलाइजेशन ना. हाँ है हम लोग हैं, है ना. Yes, sir. बट हम लोग कभी एग्रेसिव नहीं हुए, है ना. नहीं क्या सर एग्रेसिव से ज्यादा इग्नोरेंट थे. पैसिव भी नहीं थे अपन, इग्नोर. हाँ मतलब नहीं सर, इंफॉर्मेशन भी था यार, जो लोग बोलते थे कि मतलब लाइक नॉट साइंटिफिकली इग्नोरेंट बट पॉलिटिकली इग्नोरेंट. नहीं पॉलिटिकली भी यू नो, जैसे वो सब था ना ये सब यू नो चाइनीज सिविलाइजेशंस के साथ, या यू नो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ सब लिंक तो था ही, मतलब यू नो अवेयर भी थे, बट यू नो कभी उस प्रोसेस को लेके, है ना, था भी, है ना. लो जो स्टार्टिंग में जो रिलीजन था हिंदू, वो सब काफी लिबरल उसमें था, है ना. एंड मोस्ट ऑफ इट वाज ओरल सर, नथिंग वाज रिटन. चलो आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री किसी और दिन पढ़ेंगे, है ना. सो पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. अच्छा थोड़ा सा ख्याल रखना, ये पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. Peroxide effect is observed only in the case of HBr. बेटा ये पेरोक्साइड इफेक्ट HCl में नहीं है ना, ना ही HBr में है और ना ही HF में है. ये सब लॉजिक और रीजन भी हम लोग समझेंगे बेटा, इन सबका रीजन होता है ना, लॉजिक भी है इन सबका. But this peroxide effect is observed only in the case of HBr. For example, if we have CH3CH and double bond CH2 when treated with HCl in presence of peroxide, so their major product is found to be CH2 and CH2Cl. Sorry, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है ना. Its major product is found to be CH and CH3 and Cl. जो प्रोडक्ट विदाउट पेरोक्साइड भी मेजर प्रोडक्ट बनता है ना.
So there is no peroxide effect in the case of HCl. HCl में कोई peroxide effect नहीं है ना? Getting? Yes, sir. Yes, sir. So it is only in the case of HBr we have anti-Markovnikov-Addison peroxide effect in presence of peroxide. सर इसका रीजन क्या है? वो पढ़ेंगे बेटा, कुछ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, हम लोग सब डेटा भी लिखेंगे। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, काफी सारे डेटा लिखेंगे हम लोग, ऑल्दो उन डेटा को याद नहीं रखना होगा, बट इन सबको समझने के लिए हम काफी कुछ डेटा से एक्सप्लेन करेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा से एक्सप्लेन हो जाता है बेटा, है ना? ओके सर। ये लिख के हुआ है सर? यस सर। नेक्स्ट में लेट्स से इफ वी हैव बेंजीन, कुछ बेंजीन के रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद Cl2 AlCl3 behave as a Lewis acid here। ये सब बच्चों को पता है ना, लुईस एसिड, लुईस बेस क्या कहानी है ना? ये सब बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं ऐसा? हाँ सर। सो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन एंड HCl ना, ये यहां से बन जाता क्लोरोबेंजीन एंड HCl। सिमिलरली when benzene treated with Br2 in presence of iron, here product is found to be bromobenzene and HBr. Similarly, when treated with HNO3 in presence of H2SO4, this combination is known as mixed acid. So its product is found to be nitrobenzene and H2O. Similarly, when it is treated with concentrated H2SO4, ये बन जाता बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। सो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का नाम हो जाता क्लोरीनेशन। This reaction is known as bromination. This reaction is known as nitration. This reaction is sulfonation. ये लिखो, और रिएक्शंस भी लिखेंगे हम लोग। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो इधर जैसे क्लोरीन आयन की अलग प्लेसिंग है और ब्रोमीन आयन की अलग प्लेसिंग है, तो उसका कोई लॉजिक है क्या कि क्लोरीन ना जाने बेटा, सेम प्लेसिंग तो है। नहीं सर, जैसे मतलब अच्छा, मेरे पास क्लोरीन ऊपर लिखने की जगह नहीं थी बेटा, तो साइड में लिखा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हर एक बेंजीन में सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है ना? यस सर। बट ऑब्वियसली अगर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से ही कोई कनेक्टेड होता है ना, यस सर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा वो सब काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ओके सर, ठीक है सर। तब आएगा, अभी तो कुछ ऐसा था नहीं, है ना? हाँ सर। हाँ भी ऐसा लिखे हुआ है ये? यस सर, हो गया। Similarly, if we have, let's say, benzene when treated with CH3Cl in presence of AlCl3, it can be converted into this compound. क्या नाम है इस compound का?
हमें क्या है इस कंपाउंड का नाम? द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन। मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं हम लोग, है ना, प्लस लेट्स से HCl। अच्छा, इन जनरल इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहां आके ये ग्रुप इस पे R जुड़ सकता था प्लस HCl। दिस रिएक्शन इज नोन एज Friedel-Crafts alkylation। This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. Similarly, benzene when treated with, let's say, RCOCl in presence of AlCl3, this should be COR एंड ये बन जाता है HCl, और इस रिएक्शन का नाम हो जाता, लेट्स से, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन का नाम हो जाता फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ऐसा तो कुछ नाम सुना है तुम लोगों ने कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। थोड़ा लिखे हुआ है ऐसा? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सी लिखा है। SIACYLAT, हाँ, क्राफ्ट CRAFT। ओके सर। लिख लिया नहीं? नहीं, यस सर, हो गया। सर दूसरा वाला एसिलेशन है। एसाइलेशन बोल सकते हैं उसको, ACYLATION, एसाइलेशन, और एक है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सर केवीपीवाई में कितने सेट्स होते हैं? केवीपीवाई में कितने सेट्स होते हैं मतलब? सर सेट्स सीट कितने होते हैं? अबे केवीपीवाई कोई सिलेक्शन एग्जाम नहीं है। वो NTSC जैसा है बेटा, तो कुछ 1000 तक रैंक निकाल सकते हैं ना। सर कितने सारे बच्चे एग्जाम लिखते होंगे? लाखों लिखते हो। कितने 10 महीनों लाख में रिजल्ट निकलता है? कितने महीने में? अरे वो तो 1 महीने में एग्जाम निकाल देंगे। तो CBT है ना, तो CBT का रिजल्ट तो जिस दिन चाहे उस दिन निकालते हैं यार, एग्जाम लिखने के बाद। और इस बार वो तो हो नहीं रहा है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू। वो मतलब 31 जनवरी को आ रहा है, तो फेब खत्म होने से पहले पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। हाँ सर। लिखे हुआ है ये सब? ठीक है। सो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स और तुम लोग को बता देता हूं यार, मतलब स्ट्रक्चर शायद मैंने पहले भी बताया है। इट इज फिनोफ्थलीन। हाँ सर, इसका एक बार बताया था जीनियस बैच में। हाँ, इट इज मिथाइल ऑरेंज। स्ट्रक्चर ऑफ DDT
and structure of aspirin. फिनोफ्थलीन क्या है पता है सब बच्चे को? यस सर। मतलब फिनोफ्थलीन कलर चेंज करने वाला एक इंडिकेटर है ना? सो इट इज, ये जो स्ट्रक्चर है फिनोफ्थलीन का, दिस स्ट्रक्चर मे बी लेट्स से C double bond O here and C. This may be benzene and OH, and it may be benzene and OH. ये वाला जो स्ट्रक्चर है, it is the structure of phenolphthalein. Similarly, यहाँ N CH3 and CH3 N double bond N and यहाँ SO3 minus and Na plus. ये जो स्ट्रक्चर है इट इज फॉर मिथाइल ऑरेंज. डीडीटी का तो आज शायद मैं ब्लू हाउस में पढ़ाया, अभी पढ़ा था? हाँ सर. यस सर. यस सर. अच्छा, सो यहाँ ये कुछ ऐसा CH and Cl3 and as per aspirin is concerned, aspirin is, you know, OCOCH3 and COOH. So as per aspirin is concerned, it consists how many functional groups? फंक्शनल ग्रुप्स. 2 फंक्शनल ग्रुप है. एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक मेरे पास एस्टर है. ब्लू हाउस वाला बच्चा बताएगा क्या है इसका IUPAC नेम? एस्प्रिन का IUPAC नेम क्या है? ये देखो एकदम खुश हो गए बच्चे. सर 1 इथेनोएट, 2 इथेनोएट बेंजोइक एसिड, 2 इथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड. आज सिखाया ब्लू हाउस में मैंने इन लोगों को, नालायक बच्चों को नहीं कर पाए ये लोग. आयोपेक में है ये. हाँ, सो ये IUPAC नेम है 2 इथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड. ब्लू हाउस थोड़ा सा नेमिंग में आगे है, उन बच्चों को आज मैंने कराया था. रेड हाउस और ऑरेंज हाउस में इतना नहीं हो पाया है ना. अच्छा, मेरे पास अभी मैं KVY का एक और लेक्चर ले लूंगा बेटा नेक्स्ट वीक में. तो नेक्स्ट वीक में 12th क्लास का है ना,